Yes. Yes, please. Yeah. So acupressure is a alternative therapy. It's along with mudra and pranayama. Acupressure is always done. It's an age-old therapy practiced by Chinese, and it's about 2,000 years old. And the effectiveness still it is effective, and even now people are practicing by different method. And it's like it stimulates the pressure points inside our hand and also in the legs and in ears. So how we will be touching some different points in our hands today, and I'll be explaining. And then it's so effective that since all the meridians, that is the energy channels, it starts from our fingertips and it goes to our brain, and again it goes to our toes. So if there is any blockage in the energy in the meridians, then when we are putting pressure, then these channels gets opened up. That is, the free flow of energy will be there. So for the free flow of energy, we need to give some acupressure to the certain points, because certain points in our hands, feet, and ears, and on our face reflects some of the organs inside our body. So will you move ahead? Next one, please. Next slide, Yogendra ji. Yes. So what are the main effects of acupressure in human body? So with the acupressure system, the foreign matter is removed out of the body, and necessary elements are produced by the internal immune system, because acupressure increases our immune system. And this method, by awakening the electrical force of the body, produce power, energy, and activeness. It increases flexibility in all the muscular tissues of the body. It cures the deformities, the pain and pain, etc., in the bone system and the spine, which is an important part of human body. Acupressure completely helps in removing the deformities of the nervous system. With this system, functioning of all endocrine glands like thyroid, pituitary, pineal, and pancreas, etc., can be regulated. With the acupressure, adequate improvement in the normal functioning of the internal organs of the body can be brought about. These are the main effects of acupressure. Please, next slide. So how to administer acupressure? It's very important to know how do we have to apply pressure on the points, and then what is the method. So use deep, firm pressure to massage and stimulate each point. When massaging acupoints, try to relax in a comfortable position. Close your eyes and breathe deeply. Repeat the massage as often as you like. There is no limit to the number of times a day that you are going to put pressure. Besides massaging these points on yourself, anyone can also help massage these points for you. You can do self-massaging, or you can ask somebody to do it for you. Acupressure is often called acupuncture without needles. Instead of needles, acupressure involves the applications of manual pressure, usually with the fingertips, to specify points on the body. According to the principles of traditional Chinese medicine, invisible pathways of energy called meridians flow within the body. So these meridians, if there is any blockage, then we have to remove the blockage. So that's why we use acupressure.
It is based on the concept of life energy, which flows through meridians, energy channels in our body. Pressure is applied by thumb or by elbow or with various devices. I will show the device, some of the devices on the specific points with the aim of clearing the blockage. Next one, please. So it's a safe and gentle alternative therapy used to relieve symptoms from many common disorders. Unlike some forms of Western medicine, this therapy does not involve the use of any invasive techniques. A skilled practitioner simply uses their thumbs and fingers, not only practitioners. Once you know how to do it, all of us can practice it. Some conditions that benefit from acupressure include back pain, headache, fatigue, anxiety, stress, tension, feelings of melancholy, and immune system deficiencies. Studies have shown that certain types of pain are linked with feelings of anxiety and worry. We all know stress is the root cause of all the diseases. So once we remove the stress from our body, I think we'll be healthy. Acupressure is not used to treat open wounds, scar tissues, varicose veins, or areas of inflammation or swelling. Acupressure is a safe, gentle alternative therapy used to relieve symptoms from many common diseases. Unlike some forms of Western medicine, this therapy does not involve the use of invasive techniques. So this is all about how to do it. And let's move on to next one, please. Next slide. Yes. How long one should do acupressure and which time we have to do it. So it can be done anytime. So if pressure is to be applied for stomach, intestine, and liver, pancreas, it should be done on empty stomach or 2 to 3 hours after the meals. That is, any time of the day, one can practice acupressure. Next one, please. How long one should do it? Depending upon the type of disease, pressure on the specified points should be applied from 30 seconds to 2 minutes at each reflex center. Normally, pressure should be applied twice a day in the morning and evening. In case of excessive pain, pressure can be applied thrice a day also. Yes. Next one, please. See, number of pressure points. How many pressure points are there in our body? There are about 1,000 pressure points. So we are not going to learn about all those things. Only, however, 100 points are of great importance, and especially some main points in our hands, feet, and ears and face that we are going to learn during our sessions. Yes, next session. Next slide, please. Yes, I have mentioned about acupressure and reflexology. And what is the difference between them? Reflexology is a type of massage that involves applying different amounts of pressure to the feet, hands, and ears. We always say health is in our hands. So if you give pressure to the certain points in our hands, we can maintain our health. It is based on theory that these body parts are connected to certain organs and body system. So reflexology rests on the ancient Chinese belief on qi and or vital energy. According to this belief, qi flows through each person. When a person feels stressed, their body blocks qi. This is the energy. This can cause an imbalance in the body that leads to illness. Reflexology aims to keep qi flowing through the body, keeping it balanced and disease-free. So in Chinese medicine, different body parts correspond with different pressure points on the body. So it's nothing but stimulating the points so that the vital energy will be flowing through the body to keep our body healthy.
The next one, please. Yes, reflexology is similar to acupuncture and acupressure in that it theorizes an influence on the body's vital energy through the stimulation of the points on the body. However, acupressure or acupuncture points do not always coincide with the reflex points used in the reflexology. Reflexology and acupressure are both reflex therapies that they work with points on one part of the body to affect other parts of the body. While reflexology uses reflexes that are in an orderly arrangement resembling a shape of human body on the feet, hands, and outer ears, acupressure uses over 800 reflex points that are found along thin energy lines called meridians that run the length of the entire body. As I said, from fingertips to head and again to the toes, the meridians run. So now, what are the main pressure points of acupressure in our hands? You can just look into the figure and I will explaining to you later on. So you can see which are the reflex points that are in your hands, and then जैसे कि फेफड़े को दिखाया गया है, lungs है, spleen दिया है, and then heart का point है, kidneys है, intestines है, head है, sinus points है, and then our uterus and prostate glands, and then ovaries and all these points, and then we can give acupressure to the point. See, now we can consider one hand as the complete body. The finger we can, of course, okay, next one, acupressure points on our feet also. So later on we will be taking all these points, how to give pressure, and then next one, please. And then is some of the important points in our hands and in our feet. And then this, I think I will be, Jogendra ji can post this chart for your reference. Next one. Next one, please. Yes. So you can see the ear. Can you make out that जैसे बच्चा माँ का यूट्रस में रहता है, सो ये नीचे वाला लोब का जो हिस्सा है ना, वो जो बच्चे का हेड है, तो ये जो है सर का पार्ट है, उसके बाद जो है बच्चा ऐसे माँ का यूट्रस में रहता है. सो यू कैन मेक आउट, सी ऑल दीज जो पॉइंट्स यहाँ जो है, ये पिछला एकदम ये स्पाइनल एरिया है, एंड देन उसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स जो है अंदर है, जैसे ये है मुड़ा हुआ. सो हम लोग अगर अच्छी तरह ईयर में ही ऑक्यूप्रेशर देना सीख लेंगे तो पूरा बॉडी का ऑक्यूप्रेशर हम लोग दे सकते हैं. वैसे ही हैंड में भी अगर सीख लेते हैं तो पूरा बॉडी ऑक्यूप्रेशर वी कैन गिव. सो दीज आर द मेन 3 areas which I am going to touch one by one. And then next one, please. Yeah. Yes. So many people have reported that it has helped them to boost immune system, fight cancer, get over colds and bacterial infections. Now, of course, during COVID and all, we can use this. It's a viral infection. It helps in the viral infection also. Clear up sinus issues, recover from back problems, correct hormonal imbalances. It boosts fertility, improves digestion, stimulates nervous functioning, and it speeds up healing. So if one undergoes any surgery or if there is any wound, the healing can take place faster. Yes. Now I will go to the demonstration part, and then yes. So that was the introduction, and let me take up the hand points and how to. First of all, let's learn how to give acupressure using our thumbs and different probes. Now, when we say already
let me explain to the which are the main points in our hands. See, whatever points I'm showing in my left hand, they are there in the right hand also. And then there is only one difference between left and right hand that I will be telling you. Yes. Now, see, this area between the two fingers, let me start from the thumb. Okay. The thumb represents our head. The tip of our thumb here, this is our head portion. Okay. And then see, head के बाद जो है ऊपर का हिस्सा है ये अपना, उसके बाद जो है यहाँ आंख, दोनों तरफ आंख, इधर जो है नाक, इधर जो है अपना मुंह, जैसे हम आएंगे यहाँ जो है गर्दन। अगर किसी को भी अगर नेक का प्रॉब्लम है, अगर यहाँ हम आक्यूप्रेशर यहाँ प्रेशर देंगे तो वी कैन रिलीव नेक पेन। अगर किसी को हेडेक है और हेडेक अगर रहता है तो हम लोग we can use our thumb to give pressure, or else some you can use even pencil। अगर अभी आपके पास है नहीं है पेंसिल का जो पिछला हिस्सा है उसको लेके हम लोग प्रेशर देते हैं। To start with, what we do is we massage. How do we massage? Just अपना उंगलियों को आगे, साइडवेज में और पीछे कितना बार, 5 बार ऐसे हम लोग मसाज करेंगे। जस्ट स्टिमुलेटिंग, इसको ऐसे मसाज देंगे 5 बार ऐसे, आगे सामने का हिस्सा और साइड में दो उंगलियां, यू कैन यूज इंडेक्स फिंगर एंड थंब, एंड साइड में ऐसे मसाज देंगे, ऐसे साइड में मसाज देंगे ऐसे ऐसे 5 बार और 10 बार, जैसे भी आपके पास समय है उसी के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद can we do left or right, any thumb? Both the hands we have to do. Okay. See, I can show only on one hand, so that is the reason. I'll tell you. And on the back side of the thumb also, we give massage. So likewise, we stimulate all the points by massaging. हल्के से ऐसे मसाज देना है, और मसाज देने के टाइम पे it's better to use certain cream or oil. Moisturizing cream ले लीजिए, और या कोकोनट ऑयल लीजिए और आलमंड ऑयल लीजिए, क्योंकि रफनेस नहीं चाहिए, तो उसको ऐसे धीरे धीरे करके मसाज करना है। पहले ऐसे आगे सामने पीछे पूरा मसाज करना है, उसके बाद हर उंगलियों के ऊपर भी ऐसे मसाज देना है। This is very good, you know, as soon as you get up in the morning, अगर आप ये हर एक उंगली पे अगर मसाज देना 5 मिनट अगर आप करेंगे, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी रब कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट रबिंग। ओके, इफ यू आर रियली गोइंग टू गिव मसाज, देन ये कंप्लीट बॉडी मसाज हो जाता है 10 मिनट में, विदाउट रिमूविंग योर क्लोथ्स और एनीथिंग, यू कैन गिव कंप्लीट बॉडी मसाज। जैसे सिर्फ उंगलियों को आप थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, कोकोनट ऑयल लगा लीजिए या क्रीम लगा लीजिए और पहले रब करना। दिस इज व्हाट आई शोड, बस रबिंग, एंड देन डू मसाज। कैसे मसाज, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हर एक पॉइंट, ऐसे जैसे आपको लगेगा पूरा जो हिस्सा है थंब का, उस पे हम लोगों को मसाज करना है। सो मसाज करते समय यू कैन जस्ट कीप ऑन रोटेटिंग, तो ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कंप्लीट ऑल अराउंड योर थंब, यू जस्ट गो ऑन गिविंग मसाज। सो हर एक पे आप 1 मिनट सुबह जैसे उठते हैं तो ये करना, आप देखिएगा कैसे आप लोगों में एनर्जी जो है, ब्लड फ्लो एंड एनर्जी का लेथार्जी बिल्कुल चला जाता है। You can even do sitting on the bed itself in the morning, but have 1 glass of water before doing it, because it generates lot of heat, and then heat generate होने से क्या है, हम लोगों को थर्स्ट फीलिंग होगा, हमारा अटेंशन भी डाइवर्ट होगा। इसलिए पहले हमेशा हम लोगों को सुबह उठते ही पानी तो जरूर पीना चाहिए, और कुनकुना सा पानी अगर आप पिएंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। सो ये ऐसे मसाज। अच्छा, अगर आपके जो जब आप मसाज करते हैं तो आपके अंगूठे में बहुत दर्द होती है,
और हाँ. इंडेक्स फिंगर में, तो उसका क्या कर सकते हो? Like because of the arthritis, my hands are swollen and it hurts. So when I do the massage. You should give at that time very gentle massage. Very gentle, okay. Because already it is paining, and as you go on practicing it, giving massage every day, It'll get slowly better. and slowly, before doing, what you should do is, those who have got rheumatoid arthritis or anything, they should dip their hands in warm salt water. Okay, okay, okay. Okay, That's good. always, even that's a very good thing, because you can dip your hands in warm water, Okay. salt water, keep it Okay. for 5 minutes. You Okay. see how the pain will go, and even the mobility will increase. Okay. तो Good. हैंड को आप लोग जैसे ऐसे ऐसे घुमाना, ये सब जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों को शॉर्ट, ये स्मॉल जॉइंट्स में ही पेन रहता है, इसलिए ये जो हम लोग करते रहते हैं, ये सब नकल बेंडिंग्स एक करते रहना है, तो इससे क्या है, तो स्मॉल जॉइंट्स को भी एक्सरसाइज मिल जाता है. Thank तो you. you can practice that way. So ऐसे पूरा उंगलियों को आप लोगों को देना है. ठीक, इसमें क्या होता है, सारे पॉइंट्स जो हमारे उंगलियों में है वो कवर हो जाता है. Without your knowledge, you are giving acupressure to all these points. Okay, so this rubbing you can do this way. अच्छा, ये हाथ में दिखाया, ऐसे ही मैंने दूसरे हाथ में भी ऐसे करना है. ठीक है, ऐसे ऐसे सभी हाथ में ऐसे करते जाना है. और स्पेशली ये जो वेब्स है ना इन बिटवीन द फिंगर्स, इसको भी आप लोगों को मसाज देना है. उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे आप लोग इंडेक्स फिंगर से ऐसे या थंब से ऐसे अगर आप होल्ड करोगे तो यू कैन जस्ट मसाज सी दीज पॉइंट्स. सो अगर ऐसे पूरा मसाज देंगे, उसके बाद आप लोग हैंड पे पाम को पर भी जस्ट कीप रबिंग, ऐसे रब करके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पामिंग करते समय, वी आर रबिंग इट, सो वी आर जनरेटिंग हीट, इंक्रीजिंग द एनर्जी फ्लो. सो ये रबिंग ऐसे करते जाना. So you just keep on rubbing like this, and then so now already आपका जो है stimulation हो चुका है आप दोनों हाथ में. So अभी ऐसे as I said 10 minutes you have to spend for this. Okay, 10 minutes for that, and again 1 or 2 minutes for your palming, doing palming. इसको ऐसे करते रहना है. जैसे आप palming करते हैं हीट भी जनरेट होता है, तो उसमें जो है ऑलरेडी आपका जो वाइटल एनर्जी जो है, प्राणा एनर्जी है, उसका फ्लो स्टार्ट हो चुका होता है. सो ब्लॉकेजेस ऑलरेडी स्लोली एंड स्लोली वो इट इज बीइंग रिमूव्ड. सो वो धीरे से आप लोग ये जो है प्रैक्टिस करते जाना है ऐसे. उसके बाद इवन से ऐसे उंगलियों के बीच में फंसा के ऐसे ऐसे मसाज करना. ये देखिए आप लोग कितना आप लोगों को अच्छी तरह यू विल फील. जस्ट मसाज इट लाइक दिस in whatever way you want. You can just pull it, pull the fingers. Pulling is also very good. I will tell you one day, see, by pulling and stretching your fingers, one can lose even in weight. It's a very good techniques to just pull, and that in some other class I will show how to do that also technique. One can lose weight. So this is already we have just stimulated, okay, by using. So again, you can even in between, you can take the oil and do it. Now, let me touch one by one. As I was telling, this is the head area. This is the head area. If you are thumbs, and if you are having pain, headache, migraine, and then you can just give massage to the, first you rotate it, rotate 10 times in the clockwise direction, 10 times in the anti-clockwise direction. I hope all of you are able to see it. Can you see it properly? Yes, yes. Okay, yes. Then like massage this and then give pressure. How to give pressure? Just press and release, press and release, press and release, press, release, press, release. Or you can even, those who are having pain, as Baljit was saying, she cannot hold it for a longer time because already it is paining. What you can do is just press, release, press, release, press, release. And then as you're doing it 1 minute, just keep holding like this.
like this for 1 minute, and then you are going to stimulate your brain area. And then if you are having any migraine or headache, this will go away. If you do give acupressure, say in this area, both the thumbs and then also toes, you can give. So this is about the head part. So now let me come down. This is, as I said, this is the neck area. Okay. So you can just first rotate it here and give clockwise direction, 10 rounds and 10 in the anti-clockwise direction, and then press it. Okay. This is our neck area. So all this will be our neck area. Yes. As we come down, this is our throat area. Okay. This is the throat area. Here, those who are having thyroid problem, this is the point where you have to give acupressure. So 2 to 3 minutes. See, when you are giving acupressure, you have to do the breathing also. Focus on your breathing. You can close your eyes and then do it. And then first you give, again, whenever we start giving pressure, first we rotate it like just 10 rounds clockwise and then 10 rounds anti-clockwise. Just give like this. It's again massage only, this one. So you are rotating. After that, fold it, rest, gentle pressing, or press and release, press and release, press and release, press and release. Or you can use even probe, like you have, this is the chopstick I am using, and then you can just, see, you can give pressure like this. Press here. See, this is for thyroid. So those who are having thyroid problem, and then with some pranayama and then this acupressure, it certainly helps. There is one Ujjayi pranayama. If you do Ujjayi pranayama, and then Sinhasan, that is like a lion roar, and Kapalbhati, and then this acupressure, if you give slowly and slowly, your thyroid will start functioning properly. Okay. If there is hypothyroid or hyperthyroid, but don't stop medicine if you are taking, because that's very important. And then because since I'm giving acupressure, okay, I will be okay and all. No, you have to listen to the doctor first and then do it. And then this is the way you can give pressure. Okay. This is about the throat area. And then now when we come this side, this side, it is the stomach area. Any stomach problem, if you are having any stomach problem, again, it is, I'm giving the massaging, gentle rotation, then press and release, press, release, press, release, press, release, press, release. So this is how you can do. Suppose stomach, you have bloated stomach, or you are feeling your stomach is full, or you are feeling there is some feeling of nausea, then you can just give acupressure to this point. I'm slowly moving from thumb to other fingers. Okay. So this is about our throat area and the stomach area. Of course, it is since I'm going this side, this is the stomach area. Now let me come to the point of in between index finger and the middle finger. So you can ये उभरा हुआ जो है ना भाग, ये जो है हमारा आंख represent करता है. अगर आंखों में कोई तकलीफ है, and see in a very young age only people start with having some eye problem and an eyesight problem. अगर बच्चे ये सब करने लग जाते हैं ना, acupressure देते हैं, तो उनका eyesight improve होता है. So this point, anyway, I think I hope all of you are able to see. This is the point for eyes. Okay, ये उभरा हुआ जगह है. This is eye point. And similarly, in between middle finger
एंड द इंडेक्स फिंगर, ये भी आंख का है, दो आंख का पॉइंट है, दिस वन एंड दिस वन। एंड ये जो उभरा हुआ भाग है ये कान का है। जिनको भी कान में कोई तकलीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग और पेन इन द ईयर्स, यहाँ जो है they can give acupressure. ये so how long? Already I had explained. Start with 30 seconds. If you have the problem, अगर कुछ भी नहीं है तो 30 सेकेंड हर एक पॉइंट को आपको करना है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उसलिए पूरा पॉइंट्स को आक्यूप्रेशर देना है। अगर किसी को तकलीफ है उनको जो है 1 से 2 मिनट तक जो है वो प्रेशर देना है, 1 से 2 मिनट तक प्रेशर देना है। सो ये जो हुआ आंख, ये दोनों आंख का पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट है ये कान का है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, दिस इज अबाउट ऐसे थ्रोट का हो गया, ये नेक का हो गया, और यहाँ ये आंख, ये दोनों आंख का पॉइंट, और ये जो कान का पॉइंट है। अभी इसके बाद हम नीचे उतरेंगे। ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है ये लंग्स का है। दिस एरिया इज फॉर लंग्स। सो अभी हम लोगों को लंग्स को जो है काफी स्ट्रेंथन करना है और हेल्दी रखना है। तो ये जो लंग्स का पॉइंट जो है इनको इधर, सो आई थिंक, आई होप ऑल ऑफ यू हैव फॉलोड इट। ये लंग्स का पॉइंट को आपको ऐसे मसाज देना। सी, अगर कोई, जब भी आप लोग कोई पॉइंट पे ऑक्यूप्रेशर दे रहे हैं, अगर यू फील सम पेन इन सम पॉइंट, ओके, अगर हम लोग ऐसे कवर कर रहे हैं, अगर कुछ दर्द होता है, मतलब और कोई उंगलियों का दर्द नहीं, ऐसे यहाँ दर्द होता है, जिनको कोई तकलीफ नहीं है यहाँ दर्द होता है, दैट मीन्स देयर इज सम ब्लॉकेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो वहां क्या करना पड़ता है, हम लोगों को 1 से 2 मिनट तक प्रेशर देना पड़ता है। अदरवाइज 30 seconds is good enough for all the points, 30 seconds to 1 minute. So ये जो एरिया है, ये एरिया है हमारा लंग्स का हो गया, ये लंग्स का हो गया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ जो मैंने कान का बता दिया था, उसके नीचे लेफ्ट हैंड में ये जो पॉइंट है यहाँ, ये हमारा हार्ट का पॉइंट है। हार्ट का पॉइंट है। अगर किसी को हमें पता लग जाता है हार्ट में तकलीफ है या स्टार्टिंग में है, तो इस पॉइंट पे आप लोग जो है प्रेशर दे सकते हैं। डेली वन शुड गिव एटलीस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट 1 minute of occupation। ओके, ये जो है हार्ट का पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों उंगलियों के बीच में अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ जो आएंगे, ये जो पॉइंट होता है, दिस इज पैंक्रियास। जिनको डायबिटिक्स है, शुगर बहुत हाई है और शुगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, देन ये जो है इस पॉइंट को आपको, जिनको डायबिटिक्स है उनको 2 मिनट तक डेली हार्ट का ये जो पॉइंट है उस पे ऑक्यूप्रेशर देना है। ओके, सो यू कैन गिव ऑक्यूप्रेशर 2 to 3 minutes. Don't press it too hard. Okay, you should वो बोलते हैं ना मीठी दर्द होना चाहिए, मीठा सा दर्द होगा तो ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं देना है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे आप लोगों को प्रेशर देना है। दिस इज अबाउट द हार्ट पॉइंट। ओके, सो हम लोगों ने थायराइड को टच किया। यहाँ थायराइड का पॉइंट जो है ये थायराइड वाला हो गया, और मेनली, और ये जो है हार्ट का हो गया, ये जो है पैंक्रियास डायबिटिक्स का हो गया। ओके, दिस इज द पॉइंट। ये इसके नीचे हम लोग उतर के आएंगे तो हमारा यहाँ स्प्लीन है, और स्प्लीन का हम लोगों को पता ही है कि जो ब्लड का जो है प्यूरिफिकेशन करता है स्प्लीन, इट्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये तो स्प्लीन है, और इसके बाद ये बीच में हमारा किडनीज है।
ये जो है इस एरिया में किडनी है। सो ये सबसे लास्ट में हम करते हैं किडनी का पॉइंट, क्योंकि जो भी हम लोग एक्यूप्रेशर दे रहे हैं, जो टॉक्सिन्स निकल रहा है, हमारे शरीर का टॉक्सिन्स भी किडनी से थ्रू ही जाता है ना। फिर इसीलिए लास्ट में हम लोग हमेशा किडनी का पॉइंट को देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे उतर के आएंगे तो ये जो है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पॉइंट से यहाँ सब नीचे आते हैं। तो ये जो है इधर इंटेस्टाइन का पॉइंट से, और यहाँ जो है ब्लैडर है, ये दिस इज द ब्लैडर, और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का इस एरिया है, इन एरिया में ये ब्लैडर का है। और इसके नीचे हम लोग रिस्ट पे आते हैं तो यहाँ जो है हमारा जो थंब के नीचे जो है यूट्रस का पॉइंट होता है। और इसके बाद भी यहाँ जो है ये जो पॉइंट्स है हम लोग ओवरीज का है, लेफ्ट साइड में ओवरी है और राइट साइड में लेडीज के लिए ओवरी है, और यहाँ जो है यूट्रस है सबका, प्रोस्टेट है इसके नीचे, और जिनको पाइल्स का तकलीफ है उनको इस पॉइंट पे मसाज देना है। और या नहीं तो हम लोग ये जो रोटेशन ऐसे करके भी मसाज दे सकते हैं, ऐसे तो ऐसे हो गया। ये जो है मेन और मेन पॉइंट्स जो है हम लोगों को हमेशा साइनस का तकलीफ होता है, नोज ब्लॉकेज, and especially during those who have got allergy problem, and then cough and cold जिनको हमेशा होता रहता है। तो साइनस पॉइंट्स जो है ये बाकी जो चारों उंगलियों का टिप में साइनस पॉइंट्स है, ये दीज आर दी साइनस पॉइंट्स। अगर इस साइनस पॉइंट्स को हमको दबाना है तो कोई हार्ड सरफेस पे, जैसे कि अभी देखिए मैं ये लेती हूँ, ये जो चारों उंगली का ऐसे मैं दबा के रखती हूँ। सो ऐसे अगर एक साथ में हम चारों उंगलियों के पॉइंट्स को चारों उंगलियों का साइनस पॉइंट्स को ऑक्यूप्रेशर 1 मिनट तक दे सकते हैं। ऐसे कोई भी हार्ड सरफेस है, अगर दोनों उंगली हाथ का करना है, दोनों हाथ को ऐसे दबा के आप रखिएगा, और चाहिए तो अंगूठे को भी रखेंगे तो वो ब्रेन के लिए हो जाता है। सो ऐसे अगर हम दबा के रखेंगे, ये जो है ये साइनस के लिए, चारों ये टिप्स जो है ये साइनस के लिए है, चारों टिप्स का यहाँ दिस पर्टिकुलर नियर योर नेल, नाखून के पास जो ये भी पॉइंट्स है, ये जो साइनस का पॉइंट्स है, ये साइनस का पॉइंट्स है, ऑल दीज आर साइनस पॉइंट्स। अच्छा, अभी दाहिने हाथ को मैं लूंगी। मैंने बताया था एक ही डिफरेंस है बाएं हाथ और दाहिने हाथ में, बाकी सब पॉइंट्स सिमिलर है। So let me repeat once again in the right hand also. So the whole thumb represents like हमारा ऊपर का हिस्सा thumb का है वो अपना head है, उसके बाद जो है ये दोनों तरफ आंख का है, यहाँ भी, क्योंकि इसको हम पूरा एक शरीर मानते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कैसे इसको हाथ को पूरा शरीर मान सकते हैं, ये हो गया हमारा गर्दन, हेड का से लेके गर्दन तक, यहाँ तक। ओके, उसके बाद ये जो देखिए ये दोनों है हमारा हाथ है, ये दोनों हाथ है, ये दोनों क्या है, बाकी हमारा पाँव है। ओके, these are our 2 legs, these are our 2 hands, and this is, ये तो मोड़ नहीं सकते ऊपर में, तो ये जो है हमारा हेड का हिस्सा है। ओके, अगर एक पूरा हाथ में अगर हम ऑक्यूपेशन दे देते हैं तो पूरा शरीर का ऑक्यूपेशन हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रही थी जब हम मसाज कर रहे हैं दोनों हाथ में, पूरा शरीर का मसाज हो जाता है। आई होप। ओके, सो अभी हम लोग ये जो है, अगर सिर्फ हम लोग इसी को हम अपना शरीर मान लेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये जो ऊपर का गर्दन का हिस्सा है, फेस और हेड, फेस और नेक का हिस्सा हो गया, नेक का हो गया, और ये जो हमारा हाथ और ये जो हमारा पाँव। अगर आपको किसी को नी पेन है, अभी पाँव, ये जो फीट हो गया ना हमारा, ये हम लोगों का हथेली हो गया, ठीक है,
ये हम लोगों का हथेली हो गया, ये जो दोनों है हमारा पाव पाव हो गया। पाव के ऊपर से हम धीरे धीरे जाएंगे तो क्या होगा, पूरा शरीर का हमें पता है ना क्या कौन सा पार्ट कहाँ है करके। और जैसे जैसे हम ऊपर ऐसे जाएंगे, अगर किसी को नी में तकलीफ है तो कहाँ हमें दबाना पड़ेगा, आप देखिए, आप अपने आप आपकी कोशिश सीख लिया अभी आपने। सो ये जो है, अगर पाँव में कुछ तकलीफ है, ये जो नीचे का हिस्सा आप दबाएंगे, ठीक है, पाँव। और सोल जो है, पिछला हिस्सा जो है सोल में ऐसे दबाएंगे पाँव का, ये जो है फीट टोस इन सब का हो जाएगा। जो ऊपर आएंगे, ये जो आपका नी का हिस्सा हो जाएगा, ये जो है नीज का हो जाएगा। ये दोनों लेफ्ट हैंड, अगर हम ऐसे रखेंगे, ये जो हमारा हो गया लेफ्ट लेग है, मैं अपने तरफ रख रही हूँ, ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है, ठीक है। सो आप अब अगर नी पेन है, अगर यहाँ भी आप लोग आक्यूप्रेशर देंगे 1-1 मिनट 2-2 मिनट, बहुत फर्क आता है। सो ये नी का हिस्सा हो गया। और ऐसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हम लोगों का, ये जो थाइस का है, एंड देन यहाँ जो है आपका हिप एरिया आता है, जिसका हिप एरिया, ये जो हिप्स का एरिया हो गया। सो यहाँ भी अगर कोई हिप जॉइंट में पेन है या कुछ है, अगर यहाँ हम लोग पूरा जैसे 1-1 मिनट तक देंगे, नहीं तो यूज दिस मसाजिंग थेरेपी, ओके, दैट आल्सो यू कैन डू इट। तो ये हो गया हमारा पैर का। ऐसे ही ये हाथ का, अगर हाथ में उंगलियों में तकलीफ है तो ये जो है आप ऐसे मसाज करेंगे ऐसे। सो उसके बाद धीरे धीरे करके, जैसे एल्बोस में प्रॉब्लम है, जॉइंट में पेन है, यहाँ आएंगे। जैसे आप इधर इस तरफ आएंगे तो ये नेक एरिया हो जाता है। यहाँ भी ऐसे ही उंगलियों, ये हाथ है हमारा, उसका ऊपर का हिस्सा है आर्म, अपर आर्म, एंड देन एल्बो, फोर आर्म, एंड ये जो है गर्दन का हिस्सा है। इसीलिए अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ये जो है अगर नेक में कोई तकलीफ है, यहाँ भी हम लोग जो है मसाज कर सकते हैं। ओके, द as such hand is completely, it represent, you can take it as complete body. Okay, yes, let me come to the right hand. I was बीच में मैं ऐसे थोड़ा सा भटक गई, इस वो बताना था मुझे ये हमारा शरीर है करके। अच्छा, ये जो है ये जैसे कि हम लोगों को पता है, ये हेड का हिस्सा है, आंख का हिस्सा है, नाक का हिस्सा है, गर्दन का हिस्सा है। यहाँ भी आप लोगों का थायराइड जो है, ये थायराइड पॉइंट, दोनों हाथ में थायराइड का है। ओके, दोनों हाथ में थायराइड का है। यहाँ जो है स्टमक एरिया है, और एक यहाँ जो है आपका गर्दन का एरिया यहाँ आ जाता है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, जैसे हम ऐसे लेंगे तो वहां भी है। सो दो पॉइंट है, नो हार्म इन गिविंग आक्यूप्रेशर टू दीज 2 पॉइंट। और यहाँ भी आंख का पॉइंट है इन बिटवीन, ये भी आंख का पॉइंट है, ये भी आंख का पॉइंट है, और ये ईयर का पॉइंट है। और इस पॉइंट को मैंने बताया था बाएं हाथ में हार्ट का पॉइंट, यहाँ क्या हो जाता है, ये लिवर का पॉइंट होता है। हम लोगों को पता है लिवर किस तरफ है हमारे शरीर का, दाहिने तरफ है, और हार्ट कहाँ है, बाएं तरफ है। This is the only difference between right and left hand. The point of heart in our left hand becomes the liver point in our right hand. Okay, that's the only difference. So if you are having any heart problem, you think, okay, anyway, we should not get any heart problem, go on giving acupressure to the heart point. And then liver also, it's an important organ. All of us know liver is very, very important. So you can give massage to this liver point also. बाकी जो है नीचे जैसे आएंगे, ये जो हमारा पैंक्रियास का है. So those who are having diabetics, पहले आप 10 rounds clockwise, 10 rounds anti-clockwise ऐसे rotate करेंगे. फिर go on giving pressure. Pressure के लिए just pumping कर सकते हैं. The press करना छोड़ना, that we call it as pumping, pressing and leaving, pressing and leaving, pressing and leaving, ये कर सकते हैं. Or if you can tolerate the pressure, you can just press it and then for 1 minute to 2 minutes. Okay, जिनको डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है तो आप देखिएगा शुगर
कपालभाति प्राणायाम और ये और एक मुद्रा एंड ऑक्यूप्रेशर ये डालेंगे तो सचमुच धीरे धीरे करके विद इन 3 months कंट्रोल में आ जाएगा, आप देखिएगा. बट you have to do it with commitment and you have to have the faith. That is very, very important. Whatever we do, we need to have faith. Otherwise, ऐसे ही कहे सुनी बात नहीं करना है. We have to have the faith. So, and commitment. Both are important. And method of doing it. If we know all these 3, and then certainly we'll going to get the benefit. ये हो गया हमारा पैंक्रियास का. फिर उसके बाद से जो है, अच्छा मैंने स्पाइन को अभी तक टच नहीं किया है. So let's go to the spinal area because that's also very important. And then बैक पेन बहुत होता है, गर्दन का स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ये सब के लिए स्पाइन का एरिया. अच्छा, so I hope I am clear. These are the interesting points. And then finally जब सब देने के बाद आपको किडनी पॉइंट को जो है पहले रोटेट करना है, ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाना है ऐसे से. Just looking at the time, I hope. Don't look the time. We are enjoying so much. Yeah. So see, पहले तो हमेशा आप जब भी शुरू करेंगे ना, थोड़ा मसाज करना, रोटेशन देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. उसके बाद जो है आप प्रेशर देना ऐसे. सो जितना भी टॉक्सिन्स होता है ना वो निकल जाएगा अगर हम लोग ये पॉइंट्स को हम आक्यूप्रेशर देंगे. ये दोनों हाथ में देना होता है. जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर बोथ द हैंड्स वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. यस, दिस इज ऑल आवर फ्रंट पोर्शन हमने बता दिया. अभी हमारे बैक पोर्शन पे आएंगे. ओके, बैक पोर्शन पे अभी एक ये जो हिस्सा है पूरा हमारा बैक का हिस्सा है, हाथ है ना, ये कंप्लीट जो है बैक का हिस्सा. अभी हमारा इफ यू आर हैविंग एनी पेन, से बैक पेन or neck pain or any pain in any part of our body, all these channels, इसको हम channels बोलते हैं, ये जो in between the fingers ये जो चलता है इनको. So इसको अगर हम लोग प्रेशर देंगे, तो प्रेशर कैसे देना है, 4 उंगलियां लेके भी दे सकते हैं, ऐसे 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 करके आप लोग 1-1 मिनट या 30-30 सेकेंड्स प्रेशर देना. ऐसे प्रेशर देते समय अगर आपको कहीं लगा कि उस पर्टिकुलर जगह में आपको दर्द हो रहा है, वहां आपको ख्याल करना पड़ेगा कि ज्यादा देर प्रेशर दे. आप 1 मिनट से 2 मिनट तक आपको प्रेशर देना है. ओके, जैसे कि आप आगे किसी को बैक पेन है, बैक पेन होने से ये जो हिस्सा है ना, ये इस पॉइंट पे अगर अभी मैं मेरे क्लास में कई लोग आते हैं, मैं जब यहाँ इंडिया में मैं जब कैंप करती हूँ तो बैक पेन के बहुत शिकायत लेके आते हैं. अगर उनको मैं बुलाऊंगी तो आ जाओ, मैं प्रेशर देती हूँ, कोई नहीं, सिर्फ मैं ऐसे टच करती हूँ, ऐसे टच करूंगी तो उनको दर्द शुरू हो जाता है. अच्छा. इतना पेन रहता है. नॉर्मली अगर बैक पेन नहीं है तो आप ऐसे प्रेशर दो तो आपको कुछ नहीं फील होता है, वहां दर्द नहीं महसूस होता है. अगर आप थोड़ा सा अगर प्रेशर देंगे तो ऐसे लगता है कि यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट इट, इतना पेन होता है. सो ये जो हिस्सा है बैक पेन का, ये इसे आप लोग इधर प्रेशर देना होता है, एकदम पंपिंग. इट्स बेटर टू डू स्टार्ट विथ लो प्रेशर, धीरे 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 करते हुए. अगर इमीडिएट अगर हमें मैं तो ऐसे करती हूँ कि जो जिसको बैक पेन है बुलाने से ऐसे करके जोर से ऐसे पकड़ लेती हूँ, वो चिल्लाने लग जाते हैं कि हाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है करके. फिर उस 1 मिनट में ऐसे पकड़ के रखने के बाद मैं रिलीज करती हूँ. दे फील सो रिलीफ इन दैट कि लगते है थोड़ा सा कम हो गया है. सी बैक कहाँ है, हमारे यहाँ है, बट हम लोग प्रेशर कहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं. These are the reflex points, you know, they are connected to our organs. So यहाँ जो है ये बैक का जो दर्द जिनको है, any pain you take it for that matter, इसमें 1-1 मिनट आपको जो है वो देना है, आपके प्रेशर देना है. उसके बाद ये चैनल्स को भी ओपन करना है, ऐसा ऐसा करके देना है.
और जिनको ज्यादा नी पेन है वो सब करके ये जो पॉइंट है हम लोगों ने बोला ना कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो हिस्सा है ऐसे नीचे तक आप लोगों को लेके आना है, कंप्लीट ऐसा पूरा पूरा ये चैनल्स में आप लोगों को देना है ऐसे करके। और ये जो कंप्लीट हमारा अंगूठा के पूरा इधर ऑल अराउंड जो है हमारा स्पाइनल कार्ड है, ये जो है कंप्लीट यहाँ जो है स्पाइनल कार्ड है। तो इसको हमें मसाज कैसे देना है, अंगूठे से बड़ा मुश्किल है। क्या करना है, अगर ये लीजिए और ये लीजिए आप पेंसिल, तो इसको ऐसे आप लोग रोटेट करना, ये जो कंप्लीट स्पाइन का आप लोगों को दे सकते हैं ऐसा। सो दीस आर ऑल शॉर्टकट मेथड्स जो यूज करके ऐसा करके आप लोग प्रेशर दे सकते हैं ऐसा। दिस इज द वे यू कैन गिव। और ऐसे भी यहाँ जो देना है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसे मैं दिखाती हूँ, ऐसा ऐसा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे आप दीजिए। आप कईयों का आप लोगों का ऑलरेडी जो कर रहे हैं थोड़ा दर्द तो हो रहा होगा, आई थिंक यू आर हैविंग पेन, सो ऐसे करते ऐसे मसाज करना है। ऐसे नहीं कि हमें बहुत जल्दी ठीक हो जाना चाहिए करके वो नहीं करना है, ऐसे करके दोनों हाथ में। सो दिस इज आवर स्पाइनल कार्ड का है पूरा कंप्लीट स्पाइन का। सो यहाँ भी ऐसे आप लोग मसाज दे सकते हैं, ये लेके रोटेट करना। और अगर ज्यादा ही करना है तो बेलन लीजिए, बेलन लीजिए, बेलन से भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं और पीछे ऐसे भी कर सकते हैं। और ये सब अगर आपको कंप्लीट मसाज देना है, रबिंग कर सकते हैं आप बेलन से ऐसे पूरा शरीर पे ऐसे कंप्लीट रबिंग ये सभी कर सकते हैं दोनों हाथ पे। these are the points that you can give। अच्छा, अभी आप लोगों ने त्रिदोष के बारे में सुना होगा आयुर्वेद में। सो जो जिनको कफ वात पित्त का इम्बैलेंस होता है उन्हीं को डिसीजेस होता है। कफ से कई कफ ज्यादा हो गया कई तकलीफें होती है, पित्त ज्यादा हो गया कई तकलीफें होती है, वायु ज्यादा हो गया तो पूरा शरीर में दर्द, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, जॉइंट पेन और बैक पेन, नेक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस एवरीवेयर, क्योंकि वो जो हवा घूमता है शरीर का अंदर वो बहुत तकलीफ देता है सबको। सो उसके लिए क्या करना है, अपना अंगूठा, ये जो क्रीज है ना यहाँ आपका, ये जो रिस्ट का ये जो ये वाला अंगूठा का 2 विड्थ आपको नापना है। एक, अरे बड़ा मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है ये, अच्छा ठीक है, ऐसे अंगूठा का दो हाँ ऐसे रखती हूँ, ये इस क्रीज से, आई होप ऑल ऑफ यू, ये विड्थ जो है अंगूठा का एक हो गया और एक यहाँ हो गया, और यहाँ एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना ये, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दिस, ये दिस पॉइंट ये जो है, ये पॉइंट को अगर आप 1 से 2 मिनट हर रोज दबाएंगे तो आपका कफ त्रिदोष जो है वाता पित्ता एंड कफ का जो है इम्बैलेंस शरीर में है तो वो धीरे धीरे करके हट जाएगा। ऑफ कोर्स खान पान पे भी ध्यान देना है। चलो अरे हम लोग खूब आक्यूप्रेशर दे रहे हैं, खूब बढ़िया चीजें खा लेंगे, तले हुए चीज खा लेंगे और वो सब नहीं करना है, खान पान पे भी ध्यान देना है। और ये जो है यहाँ प्रेशर पहले, as I said always start with rubbing, ऐसा मसाजिंग clockwise एंटी clockwise and then keep pressing, ऐसे दबाते जाना। और देखिए अब आंख बंद करके श्वास भरते हुए अच्छी तरह डीप ब्रीथिंग लेते हुए, इतना अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी में अगर आप ये कर रहे हैं। सिर्फ 2 चीज हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वी आर डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज आल्सो एज वेल एज गिविंग आक्यूप्रेशर आल्सो। सो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना कि कफ और वात पित्त का जो है समझ में आए ना आप लोगों को। जैसे Yes. तो आप मानिए ये मेरा अंगूठा है, आई कैन ब्रिंग, सो ये अंगूठे का ये क्रीज के बाद 2 विड्थ को लेके यहाँ जो पॉइंट आता है इसको दबाना है, इसको ऐसे अच्छी तरह ये सब दबाने से 2 मिनट तक आपका कफ वात पित्त का इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा। ये तीनों दोष कवर करता है?
तीनों दोष कवर, तीनों Really? दोष कवर। मान ली हमें Really? मालूम ही नहीं कि क्या दोष है, तो इसको दबाने से तीनों दोष। कोई जरूरी नहीं है, यू नीड नॉट हैव टू नो। सपोज आपको पता है आपको वायु दोष है, करिए, वहां कोई फर्क नहीं। आपको खांसी वासी आती रहती है, बलगम रहता है, कफ रहता है, कंजेशन रहता है, करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। और पित्त का प्रकोप है, जैसे खाते ही आप खाना वाना खाते ही यहाँ जो है Bloating. गरम गरम हवा निकलती है, करता है, तो वो करिए। तो इसके लिए जो है ये तीनों पॉइंट बढ़िया चीज है। अगर नींद नहीं आ रहा है, कईयों को ये बीमारी है, नींद नहीं आती है, चाहे कुछ भी करो नींद नहीं रत्ना, आती। एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो हाँ जी। दोनों हाथों में करना है कि एक ही हाथ में करना है? दोनों हाथों में Gases- जो भी चीज जो भी करेंगे हम दोनों हाथ में करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर आपके साथ आपकी बेटी है और या कोई भी है, अब बोलिए आप उनको करिए, वो आपको करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों एक ही बार में खत्म हो जाएगा। अभी योगेंद्र जी और मिसेस योगेंद्र आपस में आगे कर लेंगे तो दोनों का हो जाएगा। नहीं तो वो लगेगा लड़ाई कर रहे हैं, वो तो लगेगा कि लड़ाई कर रहे हैं। रत्ना जी, हाँ रत्ना जी। जी, जब हम प्रेशर हाँ जी। अभी स्पिन ये बैक का कर रहे थे, तो इवन आई एम प्रेसिंग हियर, मुझे वो पॉइंट पे अंदर सेंसेशन होता है। हाँ, तो कौन सा पॉइंट पे जहाँ सेंसेशन होता है ना आपको, वहां यू होल्ड इट फॉर 30 नो, सेकंड। बट नॉट हियर द सेंसेशन। यहाँ पर प्रेस किया तो बैक में जो बोन है उसके अंदर वाइब्रेशन होता है। वेरी गुड। सी, इसका मतलब आपको जो तकलीफ हो रही है ना, उसको आप ये करते जाइए, वो चला जाएगा धीरे धीरे करके। So that is what, those already you, I think Veena ji, you are practicing acupressure. You know a bit of it, ये क्वेश्चन है ना? आप कर रही थी शायद, आपको पता है। तो ये जो है आपको, you are feeling the sensation, इसलिए हम बोलते हैं आंख बंद करो और ये करते जाओ, तो you will feel that, because these are reflex points, you know, in our hands जो भी है, it connects to our organs. Some of these points connect to our organs. That is why जैसे अभी अगर यहाँ हम प्रेशर दे रहे हैं तो हमारा बीट कैसे ठीक होना चाहिए। लोग बोलेंगे ये तो बेवकूफ है, ऐसे ही बोल रही है। नहीं, ये इट वर्क्स एंड देन जो क्योंकि करके देखा है हम लोगों ने कि इट वर्क्स एंड देन पीपल आर रत्ना स्टिल जी, डूइंग by the way, क्वेश्चन रत्ना जी कोई चीज ऐसी नहीं बता, हाँ कोई चीज ऐसी नहीं बताते जिसको वो खुद ट्राई ना करें। राइट साइड में, हेड में और कान में बहुत दर्द होता है, कभी कभी शूटिंग पेन होता है राइट साइड हेड अरे में। ये तो फ्रीज, रत्ना जी फ्रीज हो गई। अरे नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर के लिए देती है, लेट मी फिनिश दिस। आप लोग आप नींद बता रही थी, वो बताइए पहले। रत्ना जी क्योंकि टाइम भी हो रहा है, एक तो आप नींद का बताइए पहले। नींद के बारे में बताइए, नींद के बारे में। हाँ, वो वही मैं बताना चाहती थी नींद के बारे में। तो ये जो छोटे उंगली के नीचे यहाँ आइए, यहाँ आके यहाँ जो यहाँ इस पॉइंट को दबाइए, इस पॉइंट को दोनों हाथ में, ठीक है। लेटे लेटे ही आप दबा देना, इधर दबा देना। इसके पहले मास्टर पॉइंट्स है 2 हमारा, उस मास्टर पॉइंट्स इट टेक्स केयर ऑफ ऑल अदर थिंग, एवरीथिंग। तो मास्टर पॉइंट कौन सा है हमारा? ये जो मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ये दोनों एक दूसरे को जो फेस करते हैं ना, उस तरफ आप जो है ऐसे दबाएंगे कि दिस इज द मास्टर पॉइंट। कोई भी अगर आप देखिए, हर समय आप बैठे हैं, आपको कहीं एकदम दर्द उठ गया या सिर में दर्द हो गया या कुछ लेथार्जी हो गया, तो आप ये जो ऑल अराउंड ये इसके पीछे में अगर आप लोग दबाएंगे ऐसे ऐसे करके, इसमें नींद भी आ जाती है और कोई भी अगर तकलीफ है, इसीलिए हम मास्टर पॉइंट बोलते हैं इनको। तो ये जो है, इनको अगर आप दबाते हैं इस उंगली में और इस उंगली में अगर दबाएंगे तो ये जो है दिस विल हेल्प। ओके, मतलब जब तक नींद नहीं आए तब तक दबाते रहो। मतलब करते जाइए, आपको पता ही करते करते सो जाएंगे आप। हाथ छूट जाएगा, आपका हाथ छूट जाएगा। आप ये करिए,
और यहाँ ये करिए, ऐसे दबाइए, अगर नहीं आया इस तरफ, अरे भाई नींद ही नहीं आया, चलो इस हाथ में भी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर लेना। ये उसके पहले, सोने के पहले भ्रामरी और ओंकार करके सोना चाहिए। तो वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। तो वो करके फिर उसके बाद जो है आप ये जो है इसको आप करेंगे ये मास्टर पॉइंट से। तो जैसे बैठे बैठे इसके लिए रत्ना कोई फिक्स टाइम है या कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, सोने के टाइम पे, सोने के टाइम पे, हर टाइम अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ, जैसे अगर आप पेट का प्रॉब्लम है, अगर कुछ है, तो उनके लिए खाली पेट रहना जरूरी है। अगर स्टमक प्रॉब्लम्स है वहां आपको देना है। बाकी जैसे चीजों के खाना खाने कभी कोई चीज खा लो तो बहुत सी खाना खाने के तुरंत burning आधा effect आती है। घंटा, नहीं खाना burning खाने effect का जो होता है तुरंत ना, एक मिनट, खाना खाने के बाद आधा घंटे तक आपको ऑक्यूप्रेशर नहीं करना है, क्योंकि जो खाना खा रहे हैं हम लोग, उसको जो पाचन क्रिया शुरू हो जाती है आधा घंटे के बाद एकदम, तो ऑलरेडी वो केमिकल रिएक्शन होता रहता है। ओके, तो हम लोगों का ये, अगर हम लोग ऑक्यूप्रेशर भी देंगे तो एनर्जी फ्लो का भी शुरू हो जाएगा, तो फिर हमारा शरीर वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ले नहीं पाएगा कैसे क्या चल रहा है करके। इसीलिए जो है खाने खाने के पहले अगर आप लोग ऑक्यूप्रेशर करते हैं तो बढ़िया चीज रहता है, या खाना खाने के बाद आधा एक घंटे के बाद आप ऑक्यूप्रेशर करिए। 2 बार 3 बार जब भी आपको लगता है करना चाहिए आप करिए, इसमें कोई हार्म नहीं है, साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। एक ही चीज है साइड इफेक्ट का मतलब, आप लोगों को जो है बहुत जोर से दबाना नहीं है, दबा दबा के उस जगह में दर्द नहीं लाना है। तो अगर ऐसे करेंगे तो बोलेंगे ये कौन सा आक्यूप्रेशर है, मुझे यहाँ दर्द शुरू हो गया करके, वो सब नहीं करना। चलते चलते भी कर सकते, चलते चलते आप लोग कहाँ पे हाथ का थोड़ा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दबा के चलना, ये करना, ये सब आप मूवमेंट। क्वेश्चन और रत्ना जी, क्वेश्चन है, आपने कहा कि बिफोर वी स्टार्ट द प्रेशर पॉइंट पानी पीना चाहिए थोड़ा, तो बाद में भी पानी पीना चाहिए, बाथरूम जाना चाहिए, वो भी बताएं जरा। हाँ, अगर आपको लगता है पानी पीना है तो पी लीजिए, नो हार्म, यू कैन ड्रिंक वाटर, no problem. We don't have to drink after acupressure, right? It's not necessary, but you are thirsty. See, हम लोगों का एक गलतफहमी है कि पानी जो है हम लोगों का 2 लीटर 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। So whenever you feel thirsty, you must drink water. But सुबह सुबह जैसे उठते हैं हम लोगों को ये आदत डालना चाहिए कि कम से कम आधा लीटर से 1 लीटर तक पानी पिए, ताकि जो है हमारा ब्लैडर जो है कंप्लीटली वो क्लियर हो जाए, है ना। जो हमारा जो जब तक हमारा नंबर 1 और नंबर 2 ठीक से नहीं होता है तो बीमारियां रहती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे स्वामी जी हमेशा कहते हैं, अगर सुबह सुबह हमारा नंबर 2 हो जाता है तो ये हो, ऐसे लगता है कि मेरा प्रमोशन हो गया। सो यू फील सो रिलीव्ड मेरा प्रमोशन हो गया, आज के लिए मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दैट इज द साइन ऑफ योर गुड हेल्थ।